Good morning, students. Today is the first class of cost accounting. So, what is cost accounting, and what are the problems of cost accounting, and what are the advantages of cost accounting? What is the core structures of cost accounting? Today or today's onwards classes we will discuss. So, the cost accounting have in plus 2 commerce there is in paper cost accounting, plus 3 commerce first year and second year as well as first year and second year in both year there is in paper cost accounting, in company secretary, in chartered accountancy, in cost accounting, everywhere you get in paper of cost accountancy. So why cost accounting? And first one हमको पढ़ना चाहिए accounting का मतलब क्या होता है. What do you mean by accounting? Accounting is the process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and communicating the results to the users. This is known as accounting. First one, accounting हमारा तीन टाइप का होता है. Generally तीन टाइप का होता है. First one is financial accounting. Second one is cost accounting. Third one is management accounting. This one is financial accounting. This one is cost accounting. This one is management accounting. Another forms of accounting is there known as human resource accounting. Next one is human resource accounting. So many types of accounting is there. Human resource accounting. So the main motto is the main forms of accounting is these three: financial accounting, cost accounting, management accounting. So financial accounting has some limitations. So that to cross over these limitations, कॉस्ट अकाउंटिंग will arise. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ लिमिटेशंस रह गया था, जिसीलिए उसको समझने के लिए, उसको क्रॉस ओवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए मेरा क्या आया, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया. समझ में आ रहा है. सो मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या क्या लिमिटेशंस था वो पहले हम पढ़ते हैं, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग आने के बाद क्या क्या उसका लिमिटेशंस क्रॉस ओवर कंप्लीट हुआ, फिर ये वाला पढ़ेंगे. फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ लिमिटेशंस रह गया, जिसको क्रॉस ओवर करने के लिए मेरा क्या आया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. समझ में आ रहा है. सो इसीलिए इन दिस क्लास फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस what is the limitations of financial accounting, so that we have to know what is the because of comes to play of cost accounting. cost accounting आने का वजह क्या था हमको पता चल जाएगा जब हमको पता चलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशंस क्या था. समझ में आ रहा है. तो हम लोग पढ़ते हैं पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशंस क्या क्या था, फिर हम आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या क्या है. ओके. The first big limitations of financial accounting is limitations of financial accounting. The main limitations is it ignores the non-monetary aspect of a transactions. क्या होता है नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ एन ट्रांजैक्शन? सोच लो मेरे पास दो कंपनी है, A Limited, B Limited. A is selling those goods whose cost price is or whose sales price is 1 lakh per unit. In case of B Limited, it is selling the cost price of 10,000 per unit. Okay. At the end of the year, it will given that in financial accounting
The B limit's turnover is rupees 2 lakh. A limit's turnover is rupees 3 lakh. This means that the number of sales is, in case of financial accounting, it only told to us in case of A limited, its turnover is 3 lakh. In case of B limited, the turnover is 2 lakh. But it not able to represent the number of units to be sold. जब आप लोग को पता चलेगा ये 3 लाख का बिजनेस कर रहा है, ये 2 लाख का बिजनेस कर रहा है, तो आपको लगेगा कि क्या ये 3 लाख का बिजनेस कर रहा है इसलिए इसका टर्नओवर ज्यादा होगा, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, ऐसा हमको लग रहा है। पर जब हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को चलेंगे, नंबर ऑफ सेल्स निकालेंगे, तभी इसका 1 लाख पर यूनिट, तो इसका नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हो गया 3, इसका नंबर ऑफ सेल्स यूनिट हो गया 20। इसका मतलब इसके पास 3 कस्टमर है, इसके पास 20 कस्टमर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करता तो हम इसको क्या बोलते हैं, फुल सिस्टम। फुल सिस्टम हमको पता चल जाता है, फुल डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन विल बी प्रोवाइडेड। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इज नॉट प्रोवाइडिंग फुल डिस्क्लोजर ऑफ एन ट्रांजैक्शन। इज दैट क्लियर? समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? अगर ये बोल देता कि ए लिमिटेड ने एक 3 यूनिट सेल किया, बी लिमिटेड ने 20 यूनिट सेल किया, तब भी मुझे क्लियरली पता चल जाता कि मेरा बी यूनिट थोड़ा अच्छा है, उसके पास ज्यादा कस्टमर है, लोग चाहेंगे इतना तक उधर जाने के लिए। पर ये जो नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं बताने से प्रॉब्लम हो जाता है। समझ में आ रहा है? सो इसीलिए but first difference or first limitation is it ignores the non-monetary aspects of a transaction. समझ में आ रहा है पहला limitation? The second very big limitation is it always records all the assets on historical value और बुक वैल्यू। सोच लो मैंने एक लैंड परचेज कर रहा था और मैंने एक बिल्डिंग परचेज कर रहा था 1956 में या 1966 में एक बिल्डिंग परचेज किया था, मैं एक लैंड परचेज किया था, उसका वैल्यू है 7 लाख 1956 में। उसका जब मैंने सोचो ये किसका कंपनी का बिजनेस है, एलबीसी लिमिटेड का बैलेंस शीट है। एलबीसी लिमिटेड का बैलेंस शीट में लिखा है कि मेरा लैंड 7 लाख रुपीस है। कब लिखा था? 1966 में लिखा था। अभी अकाउंट बन के आ गया और सोच लो ये बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग कितना लिखा है? 7 लाख। पर हिसाब से 10% का डब्बा, पर हिसाब से 2% का डेप्रिसिएशन ले लो, 2% का डेप्रिसिएशन ले कितना तक, ये सोच लो बुक वैल्यू अभी कितना है? 3.2 लाख है। जब मैं इसका हिस्टोरिकल बैलेंस शीट देखूं और बैलेंस शीट में बुक वैल्यू देखूं किसका? बिल्डिंग का, उसका वैल्यू लिखा है 3.2 लाख। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर 1966 में एक बिल्डिंग का वैल्यू 7 लाख था तो आज उसका वैल्यू 7 करोड़ से ज्यादा होगा या 70 करोड़ से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तभी ये क्या करता है, ऑलवेज ट्रांजैक्शंस को और वैल्यू ऑफ एसेट्स को हिस्टोरिकल वैल्यू में बताता है, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम अराइज करता है फ्यूचर में। इसका मतलब हो गया नॉट डिस्क्लोजिंग दी मार्केट वैल्यू। समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है, मार्केट वैल्यू में जो ट्रांजैक्शन से उसको नहीं दिखाता है, किस ट्रांजैक्शंस को दिखाता है? हिस्टोरिकल वैल्यू को दिखा रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज द बिग लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट वन गोes for third point. Next one is not able to find out the cost of a product and selling price of a product.
क्या बोल रहा है ये कि मेरा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है ये क्या कर रहा है, बोल रहा है मेरा इतना प्रॉफिट हुआ टोटल। ये दो चीज बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या दो चीज बताता है? वन इज पीएल अकाउंट, सेकंड वन इज बैलेंस शीट। ये क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल रिजल्ट। ये बोल रहा है फाइनेंशियल पोजीशन। दैट्स ऑल। ये कभी भी नहीं बोल रहा है कि मेरा एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, मेरा एक प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस कितना होना चाहिए। सो हमको ये इट इज द बिग लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि देखो ये अगर मुझे फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं बता पाएगा, सेल्स प्राइस नहीं बता पाएगा, तो मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोल रहा है? दो चीज ही बोल रहा है। रिजल्ट बोल दे रहा है पीएल अकाउंट के हिसाब से, बैलेंस शीट बोल रहा है पोजीशन के हिसाब से। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? इसलिए दिस इज द बिग लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट वन, go through it. We will discuss point number 4. Okay, our next point number 4 is it always gives a periodical statements. पीरियडिकल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पहले हमको जो प्रिपेयर कर रहे हैं पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, हम चाहें तो बीच में प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। पूरा इधर साल या पूरा क्वार्टर वेट करने के बाद हमको पीएल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पीरियडिकल स्टेटमेंट। ये भी मेरा एक कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 5, नॉट एबल टू डू any cost control technique. कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक मतलब पहले हम एक पॉइंट पढ़ चुके हैं, वो अगर कॉस्ट वैल्यू मतलब डिफाइन ही नहीं करता है तो कॉस्ट को क्या मेजरमेंट करेगा, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेगा, सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं दिस इज द आल्सो लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Likewise, so many limitations are there. To cross over these limitations, financial cost accounting comes to play. So, next we will study what is the advantage or what is the scope of cost accounting, so that it will be very easy to understand the cost accounting. Okay? Listen. Scope of cost accounting. First one is cost ascertainment. Second one is cost control. Third one is cost reduction. Before we have to know these 3 points, we have to study about 4 points in or 4 terminologies in cost accounting. Most 4 important points. These 4 points are: first one is cost, second one is costing, third one is cost accounting, fourth one is cost accountancy. मैं फटाफट पढ़ा के चलता हूँ, फिर इसका पूरा एकदम थ्योरी नोट का पार्ट मैं पीडीएफ के लिंक करके भेज दूंगा। ओके? फर्स्ट वन इज कॉस्ट. कॉस्ट मींस द अमाउंट ऑफ मनी सैक्रिफाइस टू गेट अ प्रोडक्ट। एक चीज को पाने के लिए हम लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं, everything is known as cost. What is cost? The cost is the amount of money or monies worth sacrificed to get a product. सोच लो, there are 4 persons. A is the manufacturer. B is the wholesaler. C is the retailer, D is the consumer. ए क्या कर रहा है? एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको 3 चीज खर्चा होता है।
वन इज मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। 7 रुपीस का मटेरियल आ गया, 2 रुपीस का लेबर आ गया, 1 रुपीस का एक्सपेंसेस आ गया। ये तीनों मिला के उसको एक प्रोडक्ट जब मिलता है उसका खर्चा कितना हो जाता है? 7 + 2 + 1 टोटल कितना हो गया? 7 + 2 9, ये हो गया 1। मतलब इसका टोटल 10 रुपीस का खर्चा होता है। दैट मींस when A get a product of finished goods, he had to sacrifice rupees 7 of material, rupees 2 of labor, rupees 1 of expenses. Is that clear? So these combinations of these three is cost equals to 10. ये बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें वो कितना रुपया खर्चा किया? 10 रुपया खर्चा किया। इसीलिए A का कॉस्ट कितना हो गया? 10 रुपीस हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, cost means the amount of money or money's worth sacrificed to get a product. A को एक प्रोडक्ट मिलने के लिए वो मटेरियल में 7 रुपीस सैक्रिफाइस किया, मतलब 7 रुपीस का मटेरियल सैक्रिफाइस किया, 2 रुपीस का लेबर सैक्रिफाइस किया, 1 रुपीस का एक्सपेंसेस और ओवरहेड सैक्रिफाइस किया। टोटल तीनों को अगर मिला दो तो कितना रुपया सैक्रिफाइस किया? 10 रुपीस सैक्रिफाइस किया। सो दैट द कॉस्ट ऑफ A is rupees 10. Is that clear? सोच लो ये 2 रुपीस प्रॉफिट रख के ये B को सेल कर दिया। B ने कितना में परचेज किया? 12 रुपीस में परचेज किया। सेम प्रोडक्ट, ये सोच लो क्या था? एक मार्कर पेन था। वो जो मार्कर पेन जब B के पास आया तभी उसको कितना पैसा सैक्रिफाइस करना पड़ा? 12 रुपीस सैक्रिफाइस करना पड़ा। सो द कॉस्ट ऑफ B is rupees 12. समझ में आया? My next point is when B sold that product to C, he is taking 3 rupees of profit. 12 plus 3 is rupees 15. So for getting a final product or marker pen of C had to sacrifice rupees 15. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो C जब उसको फाइनल मार्कर चाहिए एक मार्कर के लिए वो 15 रुपीस सैक्रिफाइस कर रहा है। So the cost of marker price is respective of C is rupees 15. जब कंज्यूमर वही मार्कर को निकालेगा, बाय करेगा रिटेलर से, वो क्या कर रहा है? 5 रुपए का प्रॉफिट रख रहा है, टोटल इसको 20 में बिक रहा है। So the consumer's cost of a marker price is rupees 20. फिर से बोल रहा हूँ, A को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 7 रुपया का मटेरियल सैक्रिफाइस किया, मतलब मनी और मनीज वर्थ। 2 रुपीस का लेबर सैक्रिफाइस किया, 1 रुपीस का ओवरहेड सैक्रिफाइस किया। तो तीनों को मिलाने से वो टोटली कितना रुपया सैक्रिफाइस किया? 10 रुपया सैक्रिफाइस किया। इसीलिए कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द मार्कर पेन विद रिस्पेक्टिव ऑफ A is rupees 10. A के हिसाब से कॉस्ट 10 रुपया होता है। समझ में आ रहा है? जब B उसको परचेज किया उसके हिसाब से he had to sacrifice rupees 12 to get a marker, so that on point of view of B the cost of marker pen is rupees 12, on point of C the cost is 15, on point of D consumer the cost is rupees 20. So cost means the amount of money or money's worth sacrificed to get a product, and cost is a differential viewpoint for each and every perspective. कॉस्ट का मतलब डिफरेंस होता है। मैं पूछूंगा आप लोग को कि ये मार्केट का कॉस्ट कितना है, आप लोग बोलोगे 20 रुपीस, इन द सेंस आप कंज्यूमर हो इसीलिए 20 बोल रहे हो। अगर मैं रिटेलर को पूछूं बोलेगा 15, मैं जब होलसेलर को पूछूं बोलेगा 12, मैं जब मैन्युफैक्चरर को पूछूं बोलेगा 10। इसका मतलब हो गया कॉस्ट इज नॉट ए सिंगल रेस्पेक्टिव, कॉस्टिंग इज अ डिफरेंट रेस्पेक्टिव अप्रोच फॉर डिफरेंट पर्सन। इसका कॉस्ट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉस्ट मींस द अमाउंट ऑफ मनी और मनीज वर्थ सैक्रिफाइस टू गेट एन प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज नथिंग बट टेक्निक ऑफ फाइंडिंग एन कॉस्ट ऑफ एन प्रोडक्ट। ये थोड़ा नोट करा लो, कॉस्ट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी
or money's worth sacrificed to get a product. ओके, एक प्रोडक्ट को पाने के लिए एक आदमी और एक पर्सन जितना सैक्रिफाइस करे उसको कॉस्ट बोल रहे हैं. कॉस्टिंग का मतलब क्या हो गया? इट इज ए टेक्निक और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इन कॉस्ट ऑफ एन प्रोडक्ट. हम लोग को जो पता चल गया कि मैन्युफैक्चरिंग का रुपीस कॉस्ट 10 था, होलसेलर का रुपीस 12 था, कस्टमर का रेट 15 था, रिटेलर का कितना था 15, कस्टमर का कितना था 20. ये जो सब हम जिस प्रोसेस में फाइंड आउट कर रहे हैं, ए का कॉस्ट हमको कैसे पता चला? मटेरियल इतना, लेबर इतना, ओवरहेड इतना. ये जो प्रोसेस में हम कॉस्ट निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग. समझ में आ रहा है? So costing is the technique or process of finding in cost. दिमाग में फिक्स करके रखो ये चीज. Next one is cost accounting. It is the process of recording, classifying, summarizing to finding in cost of product. इसका मतलब हो गया हम जो कॉस्टिंग प्रिंसिपल में जो टेक्निक में प्राइस निकालेंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ, मुझे जो मटेरियल 10 मटेरियल कितना रुपए का खर्चा हो रहा था? 7 रुपए का खर्चा हो रहा था. इसका मतलब मटेरियल कितना 7 कितना मतलब 7 रुपीस जो खर्चा हुआ, मटेरियल पूरा 7 रुपीस खर्चा हुआ या 5 रुपीस का कुछ था, फिर और एक मटेरियल 2 रुपीस था. सब चीज को मुझे क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा. नहीं तो एक मटेरियल, एक मार्कर के लिए कितना मटेरियल खर्चा हुआ मुझे कैसे पता चलेगा? सोच लो, मैं 100 मार्कर के लिए कितना खर्चा कर रहा हूँ? 1000 रुपीस का खर्चा कर रहा हूँ. तो इसीलिए मैं डिवाइड करके निकाल दूंगा कि एक मार्कर के लिए मुझे 10 रुपीस का खर्चा हुआ मटेरियल. So that मुझे पता क्या चल जाएगा? मेरे मटेरियल कितना खर्चा हुआ है, मेरा लेबर कितना खर्चा हुआ है, मेरा ओवरहेड कितना खर्चा हुआ है. वो सब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. ये रिकॉर्ड मेंटेन हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग. सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग टू फाइंडिंग इन कॉस्ट ऑफ एन प्रोडक्ट. एक कॉस्ट ऑफ एन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको जो प्रोसेस करवाना पड़ता है, रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइज, पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग. नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटेंसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इट इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉस्टिंग एंड cost accounting principles to cost ascertainment and cost control and profit analysis. इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू ascertainment of cost, cost control एंड प्रॉफिट एनालिसिस. ये दो चीज को अप्लाई करके एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, हम लोग उसको कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज हम किस में पढ़ेंगे? कॉस्ट अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे. फटाफट चार चीज डिस्कशन कर लेते हैं. कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी सैक्रिफाइस्ड और मनी's worth sacrificed to get a product. Costing is the techniques or tools by which we have to find a product. Cost accounting is the recording process of recording, classifying, summarizing to get a cost of a product or to finding a cost of a product. It is the cost accountancy is the combinations of costing and cost accounting principles to cost analysis, cost assessment, profit analysis.
इज दैट क्लियर? ये चारों चीज कॉस्ट अकाउंटिंग में एकदम वाइटल रोल प्ले कर रहा है। समझ में आ रहा है ये चारों चीज? फिर हम कहां चलते हैं अभी? ये 3 में चलते हैं, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज कॉस्ट एसेटिंगमेंट। सोच लो, मेरा जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग होगा मुझे 3 चीज चाहिए। फर्स्ट वन इज कॉस्ट एसेटिंगमेंट। कॉस्ट एसेटिंगमेंट का मतलब क्या होता है? टू फाइंडिंग एन कॉस्ट ऑफ एन प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे जितना कॉस्ट लगता है उसको फाइंड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट एसेटिंगमेंट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कॉस्ट एसेटिंग मींस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन कॉस्ट ऑफ एन प्रोडक्ट। मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग में ओनली 3 चीज करना पड़ेगा। 3 चीज ही करना, 3 टाइप का काम करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज कॉस्ट एसेटिंगमेंट, मतलब मेरा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट एसेटिंगमेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 2 processes, almost most of people says that cost control and cost reduction is the same, but there is a hell and heaven difference between these two, because if these are two same thing, there is not required to define 2 terms individually. अगर एसेटेन और कंट्रोल का मतलब एक ही होता तो 2 वर्ड फालतू में बनाने के लिए जरूरत नहीं था। कॉस्ट कंट्रोल इज अ डिफरेंट थिंग, कॉस्ट रिडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। मैं एक चीज बता देता हूं बस, कॉस्ट कंट्रोल हम लोग कौन से चैप्टर में करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। और कॉस्ट रिडक्शन वाला चैप्टर जो है, कॉस्ट रिडक्शन हम कहां पढ़ेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। और दिस वन कॉस्ट एसेटमेंट के लिए मैं अब भी पढ़ाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 टाइप का मेथड से, 7 टाइप ऑफ मेथड्स में हमको कॉस्ट एसेटमेंट करना पड़ेगा। जो पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये 3 चीज में चलता है। मतलब हम लोग पढ़ेंगे, वन इज यूनिट कॉस्टिंग पढ़ेंगे, बेच कॉस्टिंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वन इज प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ेंगे, सर्विस कॉस्टिंग पढ़ेंगे, मल्टीपल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। ये सब चीज किस लिए काम को आएगा? कॉस्ट एसेटमेंट करने के लिए काम को आएगा। समझ में आ रहा है? दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ेंगे। कॉस्ट कंट्रोल कहां काम आएगा? जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे एक चैप्टर, उसमें हमारा कॉस्ट कंट्रोल कब आता है? समझ में आ रहा है? कॉस्ट रिडक्शन कहां आएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग में आएगा। तो पूरा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का बात है ना, इतने में खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग में। समझ में आ रहा है? सो कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 चीज हमको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज कॉस्ट एसेटमेंट, सेकंड वन इज कॉस्ट कंट्रोल, थर्ड वन इज कॉस्ट रिडक्शन। फिर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखते हैं। कॉस्ट कंट्रोल सुनो, जब भी पढ़ाई करते हो ईच एंड वर्ड को तोड़ के पढ़ो, फिर मजा आएगा। क्या होता है कंट्रोल, क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है, एक एक वर्ड को लिमिटेड मतलब हमको पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं पहले कॉस्ट कंट्रोल तक जाता हूं। कॉस्ट कंट्रोल मतलब सोच लो मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं। मैंने सोचा था इस बार मेरा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो 10 रुपया पर यूनिट खर्चा होगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या सोचा था मैंने? मेरा 10 रुपया का खर्चा होगा। दिस इज माय स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब मैंने सोचा था मेरा 10 रुपया खर्चा होगा। समझ में आ रहा है? जब मैंने एक्चुअली खर्चा किया तब भी मेरा 12 रुपीस खर्चा हुआ। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा अच्छे से सुनो। मैंने सोचा था मेरा 10 रुपया का खर्चा होगा, जब मैंने एक्चुअल कॉस्ट खर्चा करवाया तब भी मुझे पता चला कि मेरा 12 रुपया का खर्चा हुआ है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट इज बिलो एक्चुअल कॉस्ट और actual cost is above standard cost, then we have to apply only cost control technique. इधर मैं लिखता हूं, ये most important चीज है। When
actual cost is above standard cost, then only, ये बोल तभी मुझे यूज करना पड़ेगा, then only we have to apply cost control technique. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Whenever the actual cost is more or above standard cost, then we have to apply cost control technique. तब हम कॉस्ट रिडक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट कंट्रोल करवाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज का बात है। क्यों बोल रहा हूं क्या पता है क्या? लोग सब बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इज इक्वल्स टू कॉस्ट रिडक्शन। ये कभी नहीं होता है, थोड़ा अच्छे से याद रखो। कॉस्ट कंट्रोल हमको कब करवाना पड़ेगा? जब मेरा एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर में क्या बोल रहा हूं? अभी देखो, मैंने सोचा था स्टैंडर्ड मेरा 10 रुपए का खर्चा होगा, ओके। मैंने जब एक्चुअल खर्चा करवाया 10 रुपया हुआ और 9 रुपीस हुआ। समझ में आ रहा है? When standard actual cost is above standard cost, then we have applied to cost control. When actual cost is equals to or less than standard cost, then we have to apply cost reduction technique. और सोच लो, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो हम कॉस्ट कंट्रोल करेंगे। अगर सेम हो रहा है, सेम भी हो रहा है 10 रुपया, तो मैं सोचूंगा भाई ये स्टैंडर्ड कॉस्ट को मैंने कैसे कम करवाऊं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो कॉस्ट कंट्रोल इज एप्लीकेबल व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर ये सोच लो, मैंने फिक्स किया था नॉर्मल सा है, इतना दिमाग मत लगाओ, नॉर्मल डे टू डे लाइफ का दिमाग लगाओ। मैं सोच रहा हूं कि मैं अगर ये पास में जाके एक मार्कर पेन परचेज करके लाऊं, ये नॉर्मल ये छोटा सा रिटेलर का शॉप है, अगर मैं वहां से परचेज करके जाऊं, मैं घर से सोच के गया था, अच्छे से सुनो, मैं घर से सोच के गया था कि मुझे ये मार्कर पेन परचेज करने के लिए 10 रुपया चाहिए। जब मैंने मार्कर पेन परचेज करने के लिए गया, तभी मेरा 12 रुपया खर्चा हो गया। उस शॉपकीपर ने बोला कि सर ये मटेरियल 12 रुपया का लगेगा आपको, ओके। तभी मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोचा था भाई, मैंने तो सोचा था 10 रुपये में हो जाएगा, तभी मैं वहां से परचेज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास 10 रुपये ही है। मैं बोलूंगा उधर 12 रुपये मिल रहा है ना, अगर आपके शॉपकीपर में आप रिटेलर है, यहाँ 10 रुपये मिल रहा है, मैं थोड़ा होलसेलर के पास जाता हूँ, तभी मुझे आपके वहां से 12 में मिल रहा था, तब मैं होलसेलर के पास जाता हूँ, वहां मुझे 10 रुपये में मिल जाएगा। इसीलिए इधर मैं क्या करूंगा? कॉस्ट कंट्रोल करूंगा। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या? अभी वही सेम कांसेप्ट है, यहाँ मुझे 10 में मिल रहा है, मैंने क्या सोचा था, यहाँ मार्कर मुझे 10 में मिल रहा है, तब भी मैं अगर मैं जाके होलसेलर से परचेज करूं, तब भी मेरा ये कॉस्ट 9 में मिल सकता है। दिस वन इज माय कॉस्ट रिडक्शन। समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, जब मेरा एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, वी हैव टू अप्लाई कॉस्ट कंट्रोल। मतलब कंट्रोल करके मुझे 10 तक लाना पड़ेगा। जब तक वो टेक्निक 10 तक आ जाएगा, फिर मैं कम करके उसको 9 तक लाऊंगा। दिस वन इज कॉल्ड एज कॉस्ट रिडक्शन। When 10 comes to 9, it is known as cost reduction. When 12 comes to 10, it is known as cost control. Is that clear? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? So cost control and cost reduction is an hell and heaven difference between these two. So the scope of cost accountancy और cost accounting, तीन चीज हमको करना पड़ेगा। कॉस्ट एसरटेनमेंट करना पड़ेगा, मटेरियल कितना खर्चा हुआ, लेबर कितना खर्चा हुआ, टोटल ओवरहेड कितना खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस कितना खर्चा हुआ, सबको बताने के लिए कॉस्ट एसरटेनमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में क्या होगा? हम लोगों को जो मेरा एक्चुअल प्राइस अगर स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा हो रहा है, उसको कैसे कम करके स्टैंडर्ड तक लाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। ये एक एग्जांपल देखो, मैंने कॉस्ट कंट्रोल में क्या सोचा था, 12 निकल के मेरा 10 तक आ जाना चाहिए। जब 10 तक आ गया, तभी मैं क्या करूंगा? थोड़ा बाहर जाके परचेज करूंगा, नहीं तो और कुछ काम करके 12 से इसको
10 आ गया, 10 से 9 लेके कोशिश करूंगा। अगर 10 से 9 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट रिडक्शन, तब मुझे कौन सा कांसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, मार्जिनल कांसेप्ट। और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है थोड़ा बाद में पढ़ेंगे हम, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, सब पढ़ेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमको पढ़ना पड़ेगा, किस लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए। बट कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, इसको और एक नाम है वेरिएंस एनालिसिस। हमको जो डिफरेंस आया 10 और 12 20 के 2 रुपए का, उस 2 रुपया डिफरेंस क्यों आया, उसको मुझे मतलब निकालना पड़ेगा, रूट लेवल तक जाना पड़ेगा। वो 2 रुपया को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट लेवल तक जाके उसको खत्म करना पड़ेगा। दिस वन इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंट्रोल। समझ में आया पूरा क्या था, वन इज कॉस्ट असेटमेंट, सेकंड वन इज कॉस्ट कंट्रोल, थर्ड वन इज कॉस्ट रिडक्शन। ओके, तो अब हम लोग किधर पढ़ते हैं, कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है। ज्यादा लोग कॉस्टिंग सिस्टम नहीं पढ़ते, उसको स्किप कर जाते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत वास्ट नॉलेज यहां से गेन होगा। कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है, इसको आज लोग हम फोकस करते हैं। इज कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग system. First point is, it is not a ready-made system. क्या है ये पॉइंट को हमको समझना पड़ेगा, रेडीमेड सिस्टम क्या होता है। हम इसके पहले एक पॉइंट थोड़ा सा आगे आते हैं। वन इज फाइनेंशियल सिस्टम। Financial system as per GAAP, General Accepted Accounting Principles। ये क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल अकाउंट्स मींस हमको 4 चीज प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या 4 चीज, फर्स्ट वन हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड वन हो गया बैलेंस शीट, थर्ड वन हो गया नोट्स टू अकाउंट, फोर्थ वन हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिस्टम मतलब क्या है, अगर हमको फाइनेंशियल सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा तभी मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, 4 चीज फॉलो करना पड़ेगा। वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड वन इज बैलेंस शीट, थर्ड वन इज नोट्स टू अकाउंट, फोर्थ वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है, ये जो चारों चीज था इसको हम क्या बोलते थे, अकाउंटिंग सिस्टम। अभी मेरा IFRS आपको पता होगा, अभी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं रहा, हमारा क्या आ गया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये क्या बोल रहा है, along with these 4 you have to do an extra thing, that is statement of change in equity shares of a company। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा अच्छे से सुनो। जब मेरा जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल चल रहा था तभी मुझे क्या करना पड़ता था, ये 4 चीज प्रिपेयर करना पड़ता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब मेरा गैप का कांसेप्ट चला गया, ये एकदम बेस्ड ऑन इंडिया में था, ये हो गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये बोल रहा है तुम जो 4 प्रिपेयर कर रहे थे वो 4 प्रिपेयर करो, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। ये 4 के बाद तुमको और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एन कंपनी। तुम्हारा स्टार्टिंग में इक्विटी शेयर कितना था, एंडिंग में इक्विटी शेयर कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, ये सब तुमको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये देखो कितना मजा आएगा, फाइनेंशियल सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तुम बोलोगे सर मैं बहुत कम पैसा कमाता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंट में काम करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करवा देता हूँ, ये बैलेंस शीट नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है करवाना, और मेरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स थोड़े नीचे थोड़े मतलब लिखना पड़ता है, लिख देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं।
कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत मतलब डीप जाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है प्रिपेयर करने के लिए, मैं ये नहीं करूंगा। और चेंज इन इक्विटी से ये भी नहीं करूंगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम बोलोगे सर फाइनेंशियल सिस्टम में मैं प्रॉफिट एंड लॉस एकदम इजी है, मैं फटाफट बना लेता हूँ, वो चार्टर्ड अकाउंट को नहीं बुलाता हूँ, खुद बना लेता हूँ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट। बैलेंस शीट थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इतना पता नहीं चलता, उसको छोड़ देता हूँ। नोट्स टू अकाउंट तो 2-4 लाइन लिखना पड़ता है, नीचे लिख लेता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत डीप जाता है, ऐसा नहीं बनाता उसको। इक्विटी से छोड़ दो, मैं तो इक्विटी से छोटा बिजनेस हूँ, क्यों ये बनाऊंगा? प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, नॉर्मल मुझे इक्विटी से कुछ चेंज नहीं हुआ है, मैं नहीं बनाऊंगा। कंपनी आप तुमको तोड़ देगा भाई, फाइन पेनल्टी सब लगा देगा। ये बोल रहा है ये भाई फाइनेंशियल सिस्टम है, तुमको जब प्रिपेयर करना पड़ेगा पांचों का पांचों प्रिपेयर करना पड़ेगा। तुमको प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर ही करना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट भी करना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये पांचों का पांचों चीज प्रिपेयर करना पड़ेगा, कोई भी एक चीज तुम स्किप नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बट इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इट इज ए फुल ऑप्शनल। तुम क्या बना रहे हो नहीं बना रहे हो तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं हम लोग। कॉस्ट अकाउंटिंग तो बोलोगे सर कॉस्ट अकाउंटिंग तो फॉलो करना कितने का मतलब कंपलसरी है? भाई कंपलसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा फॉलो कर लिए, मतलब कॉस्ट अकाउंट में जो जो चीज है उसको कंपलसरी करो बोल के नहीं बोल रहा है। मतलब तुम बोलोगे मेरा कॉस्ट में कितना आता है, हम तीन चीज पढ़े, वन इज कॉस्ट, सेकंड फर्स्ट वन इज कॉस्ट मेजरमेंट, second one is cost control, third one is cost reduction। समझ में आ रहा है? तभी देखो मैं अगर कॉस्ट मेजरमेंट कर लूं, मुझे ये तो जरूरत नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जरूरत नहीं है, मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग का जरूरत नहीं, मैं ये दो नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज इट इज एन रेडीमेड सिस्टम। जिसको जैसा चाहिए वैसा बनाओ, तुम्हारे यूज के हिसाब से तुम बनाओ। तुम नहीं बोल पाओगे कि मेरा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे प्रॉफिट ही जानना है, मुझे कितना बैलेंस है, मेरा एसेट कितने मुझे नहीं जानना है, मैं नहीं बनाऊंगा। ऐसे नहीं हो सकता, तुमको ये पांचों का पांचों चीज बनाना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, बिकॉज इट इज एन रेडीमेड सिस्टम, यू हैव टू डू एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर बजट, एज पर योर साइज ऑफ बिजनेस। तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा है, तुम तीनों बनाओ। तुम्हारा बिजनेस छोटा है, एक बना के छोड़ दो। तुम्हारा बिजनेस मतलब तुम चाहते हो कि मैं इतना पैसा खर्चा नहीं कर पाऊंगा, तो तुम एक बना के छोड़ दो, तुमको किसी ने बोलना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है इट इज नॉट एन रेडी, इट इज ए रेडीमेड सिस्टम। मतलब हमको ये रेडीमेड सिस्टम करना पड़ता है, तुम जो काम है वैसा करो, वैसा फिक्स होके नहीं आता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग जब पढ़ेंगे, देखो कॉस्ट एसेटेनमेंट था। कॉस्ट एसेटेनमेंट में हम 7 चीज पढ़ेंगे। जब आएगा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग तब मैं पढ़ाऊंगा। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में एक आएगा यूनिट, नेक्स्ट आएगा जॉब, नेक्स्ट आएगा बेच, नेक्स्ट आएगा कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट आएगा सर्विस। ऐसे करके 7 टाइप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक आएगा, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक जो है जनरली 3 यूज होता है, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटिंग। मैं क्यों यह बोल रहा हूं? मैंने जब बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम यू हैव टू फॉलो दिस 5 कंडीशन, मतलब मेरा फाइनेंशियल जो सिस्टम है ये क्या है? रेडीमेड सिस्टम। मतलब जो भी प्रिपेयर करेगा उसके लिए पांचों का पांचों चीज सेम होगा। बट कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट ए रेडीमेड सिस्टम। मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे हिसाब से अगर तुम यूनिट है, तुम्हारा जो बिजनेस है वो यूनिट कॉस्टिंग आ रहा है, यूनिट प्रिपेयर करो।
जॉब बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टैंडर्ड मार्जिनल बजटिंग, ये कुछ बनने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, ये फालतू का चीज मटेरियल यूनिट जॉब बेस्ड स्टैंडर्ड ये सब मार्जिनल बजटिंग के बनने की जरूरत नहीं है। तो ये बोल रहा है बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज नॉट ए रेडीमेड सिस्टम, मतलब ये सबके लिए सेम नहीं होता है। तुम्हारे कन्वीनियंस के ऊपर, तुम्हारे बजट के ऊपर, तुम्हारे कैपेबिलिटी के ऊपर तुम बना पाओगे। तो तुम बोलोगे सर ये जो है कौन सा बेसिस में हमको देखना पड़ेगा? वो जो बेसिस ऑफ चूजिंग एन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब बेसिस, कौन सा बेसिस पे हमको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चूज करना पड़ेगा? फर्स्ट बेसिस इज, माय फर्स्ट बेसिस इज ऑब्जेक्टिव। मतलब मैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग बना रहा हूं किस पर्पस के लिए बना रहा हूं, मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? सोच लो, आई हैव एन नॉर्मल ऑब्जेक्टिव और स्पेशल ऑब्जेक्टिव। नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नॉर्मल ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट एसर्टेनमेंट। कॉस्ट निकालना हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए हम यहाँ क्या बोलते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्टिव। स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है हम लोग पढ़े अभी, वन इज कॉस्ट कंट्रोल, सेकंड वन इज कॉस्ट रिडक्शन। ये तुमको बोलना चाहता है कि भाई तुम जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज इट इज नॉट एन रेडीमेड सिस्टम, ये हमेशा तुमको नहीं बोल रहा है सब चीज फॉलो करो, सब चीज प्रिपेयर करो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था तो वो प्रिपेयर करने के लिए? अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट एसर्टेनमेंट, तुम नॉर्मल ऑब्जेक्टिव फॉलो करो, नॉर्मल कॉस्ट अकाउंटिंग, स्पेशल नॉर्मल कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करो। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, तब भी तुमको स्पेशल ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा। नॉर्मल ऑब्जेक्टिव हमको क्या करना पड़ेगा कॉस्ट में? हम लोग पढ़ेंगे कॉस्टिंग मेथड्स, मतलब जो 7 टाइप का मेथड है वो मेथड से कौन सा भी फॉलो करो, कॉस्ट एसर्टेनमेंट निकालो तुमको, और एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव तक जाना नहीं है। अगर तुमको स्पेशल ऑब्जेक्टिव कराना है, तुम कॉस्ट कंट्रोल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ो, कॉस्ट रिडक्शन में मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ो। समझ में आ रहा है? So the cost accounting system is based on basis on first point objective। तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है ये करो, स्पेशल ऑब्जेक्टिव है ये करो। समझ में आ रहा है? फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज साइज ऑफ बिजनेस। क्या होता है साइज ऑफ बिजनेस? जनरली बिजनेस साइज दो टाइप का होता है, वन इज स्मॉल, सेकंड वन इज लार्ज। हम मीडियम बोलते हैं पर यहाँ एस्पेक्ट के लिए हम दो चीज लेते हैं, स्मॉल और लार्ज। अगर तुम्हारा स्मॉल बिजनेस है, ये सब चीज करवा के तुमको फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। स्मॉल बिजनेस है, कॉस्ट निकालो, बात खत्म। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन इतना नहीं चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाओगे, वो तुम्हारा कॉस्ट 50 रुपए का बचाएगा, उसका सैलरी 70 रुपया हो जाएगा, फालतू में 20 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। Whenever there is a large organization is there, you have to do all these things। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए बोल रहा हूँ अगर वो स्मॉल बिजनेस है तुम्हारे हिसाब से बनाओ, अगर लार्ज बिजनेस है तुम्हारे हिसाब से बनाओ। पॉइंट नंबर 3, नेचर ऑफ बिजनेस। फिलहाल हम 5 मिनट में पढ़ेंगे, 5 या 10 मिनट के बाद पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग मेथड्स। तुम्हारा बिजनेस का नेचर कैसा है उस हिसाब से हमको कॉस्टिंग मेथड चूज करवाना पड़ेगा। सोच लो तुम सीमेंट बिजनेस कर रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है ये हम थोड़े देर में पढ़ेंगे, बस अब थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। इसके बाद
सीमेंट यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, थोड़ा देर में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होगा रे, तुम्हारा बिजनेस अगर सीमेंट में है तुम यूनिट कॉस्टिंग फॉलो करो, तुम्हारा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करो, अगर तुम्हारा बिजनेस प्रोसेस में है प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करो, तुम्हारा बिजनेस मल्टीपल में है मल्टीपल कॉस्टिंग फॉलो करो। इसका मतलब ये बोल रहा है कि तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है उसके हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा, ये सब फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 4 is age per relevance and budget। तुम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए कितना खर्चा पाओगे, कितना खर्चा कर पाओगे? अगर तुम ये एज पर रिलेवेंस एंड बजट में क्या बोल रहा है, अगर तुम बना मतलब तुम्हारे पास कैपेबल है, तुम बना पाओगे इसको, अगर तुम बना you have an sufficient money or you have a good financial position, then you have to do all these things। if you do not have any financial conditions तो तुमको इतना सब बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फटाफट ये चार चीज देखो, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट वन लास्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं। एक पॉइंट, कॉस्ट एसेटेनमेंट। कॉस्ट एसेटेनमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो कॉस्ट एसेटेनमेंट करना पड़ेगा, कॉस्ट हमको कैसे निकालना पड़ेगा, ये भी एक कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम का बात होता है। तो हमको ये 5 चीज पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा। साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा। नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा। एज पर रिलेवेंस एंड बजट, तुम्हारे पास कितना पैसा खर्चा है, तुम कितना खर्चा कर पाओगे, उस हिसाब से इसका कंट्रोल करना पड़ेगा। लास्ट वन इज कॉस्ट एसेटेनमेंट, इसके हिसाब से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। इतना तक देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 चीज पढ़ेंगे हम, वन इज मेथड, सेकंड वन इज टेक्निक। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। थैंक यू।